یسوع کے پاک جلالی بابر کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج اسی خدا کے کلام میں سے غزل الغزلات جو حضرت سلیمان نے لکھی ہے، بائبل مقدس میں حضرت سلیمان کی 3 کتابیں ہیں، 2 منظوم ہیں، ایک نثر میں ہے۔ نظم میں مثال کی کتاب ہے اور غزل الغزلات، یہ دونوں کتابیں نظم میں ہیں جو عبرانی متن میں ہیں۔ واحد کی کتاب یہ نثر میں لکھی ہوئی ہے۔ غزل الغزلات یہ حضرت سلیمان کی بہت ہی روحانی غزل ہے۔ اس کے الفاظ جسمانی ہیں مگر اس کا مفہوم نہایت ہی روحانی ہے۔ غزل الغزلات میں 3 کردار ہیں جو جسمانی لحاظ سے ہیں، وہ ہیں حضرت سلیمان اور شوربیت، ابیشاگ، اور تیسرا کردار ہے چرواہے کا۔ جسمانی طور پر تو یہ 3 کردار ہیں، لیکن روحانی طور پر بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے اور مسیحیوں کے لیے بھی ہے۔ روحانی جو 3 کردار ہیں وہ ایک خدا کا کردار ہے، ایک بنی اسرائیل کا کردار ہے، اور ان کے معبودوں کا جن کی طرف وہ جھکے ہوئے ہیں، جن کی بات کرتے ہیں۔ ایک کردار خدا کا ہے، جس طرح سلیمان شونمیت سے پیار کرتا ہے اور شونمیت اپنے چرواہے کے ساتھ پیار کرتی ہے اور اسی کے گن گاتی ہے۔ جسمانی طور پر تو یہ 3 کردار ہیں، مگر روحانی طور پر مسیحیوں کے لیے یہ ہے، یہ 3 کردار ایک یسوع کا کردار ہے، ایک کلیسیا کا ہے، اور کلیسیا دنیا سے پیار کرتی ہے۔ یسوع کلیسیا سے پیار کرتا ہے اور کلیسیا دنیا سے پیار کرتی ہے، یسوع کے ساتھ پیار نہیں کرتی۔ تو یہ 3 روحانی کردار ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے اور یہ مسیحیوں کے لیے بھی لکھی گئی ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ اس کی جو عبارت ہے وہ جسمانی ہے، مجازی ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ نہایت ہی پاکیزہ اور روحانی ہے۔ اب ہم ان 3 جسمانی کرداروں کے لحاظ سے روحانی کرداروں پر ان کو منطبق کریں گے، ان کو جانچیں گے، پرکھیں گے کہ جس طرح سلیمان شونمیت سے پیار کرتا ہے، شونمیت بھی اس کا نام ہے، شونمیت بھی ایکچولی اس کا نام ابیشاگ تھا۔ یہ شنیم شہر کی رہنے والی تھی، جسے شونمیت بھی کہتے ہیں اس نسبت سے، اور شونمیت بھی کہتے ہیں، جس طرح یہ مریم مگدلینی، یہ اس شہر کا نام مگدل بھی ہے اور مجدل بھی ہے۔ مجدل بھی اس کو کہتے ہیں اور مگدل بھی کہتے ہیں۔ تو جس شہر کی یہ رہنے والی تھی ابیشاگ، اس شہر کا نام شونمیت بھی ہے، شنیم بھی ہے اور شلیم بھی ہے۔ تو اب سلیمان نے جو یہ غزل الغزلات یہ غزل لکھی ہے، شونمیت کی محبت میں، اس کے ہجر میں لکھی ہے، لیکن وہ اس کی توجہ نہیں کرتے اس کی طرف، وہ اپنے چرواہے کے گن گاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شونمیت کیا کہتے ہیں، جسمانی الفاظ اس کے کیا ہیں، اور اس کو ہم روحانی لحاظ سے دیکھیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔
ग़ज़ल-उल-तलाक़ पहले बाब की 5वीं और 6ठी आयत पढ़िए। ग़ज़ल-उल-तलाक़ पहले बाब की 5वीं और 6ठी आयत ये अपने बारे में क्या कहती है। शूरवीर सुलेमान इसके गुण गाता है। सुलेमान इसके हिजर में तारीफ के बड़े लंबे लंबे पुल बांध देता है, मगर वो अपने आप को क्या कहती है। पहले बाब की 5वीं आयत और 6ठी आयत, पहले बाब की 5वीं ग़ज़ल-उल-तलाक़ पहले बाब की 5वीं और 6ठी आयत। आप शूरवीर का बयान सुनिए और फिर हम इसको रूहानी तौर पर देखेंगे कि असल में ये हकीकत क्या है। यरूशलेम की बेटियों, मैं स्याह-फाम लेकिन खूबसूरत हूँ। मैं स्याह-फाम हूँ। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं स्याह-फाम हूँ। आगे 6ठी आयत, मुझे मत ताको, मैं स्याह-फाम हूँ। मैं स्याह-फाम हूँ, मुझे मत ताको। अब ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि जब कोई हम दुल्हन को ब्याह के लाते हैं तो औरतें देखने के लिए आती हैं। ये हमारे पंजाबी कल्चर में है, बल्कि हर मज़हब में भी है ये कि जब कोई नई दुल्हन ब्याह के लाते हैं तो औरतें उसको देखने के लिए आते हैं। और जिस तरह पंजाबी जो कहते हैं ना, चलो नहीं वो भी देखने चलिए। और एक वक्त आता है कि औरतें कहती हैं चलो उनकी दुल्हन को देखने चले, या चलो वो भी देखने चलिए। और एक वक्त ऐसा आता है कि वही औरतें कहती हैं चलो नहीं उन्होंने माई मर गई है, बेहा ये वो दुल्हन बन के आती है और फिर दादी बन जाती है। 2 मरतबा औरतें देखने के लिए आती हैं। एक मरतबा जब वो दुल्हन बन के आती है और दूसरी मरतबा जब वो माई का लक़ब उसे देते हैं, उन्होंने माई मर गई चलो देखते हैं। अब इस शूरवीर को भी औरतें देखने के लिए आई कि जिसके हिजर में सुलेमान ने ये इतनी बड़ी गज़ल लिख दी है, पता नहीं वो कितनी खूबसूरत होगी। अब जब उसको देखने के लिए आती हैं तो वो कहती है ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझे मत ताको, मैं स्याह-फाम हूँ, मैं तो काली हूँ। कभी औरत अपने आप को स्याह-फाम नहीं कहती है ओ खूबसूरत होने के लिए बड़े बड़े टचन करती है, ब्यूटी पार्लर में जाती है। कभी औरत अपने आप को बदसूरत नहीं कहती, कभी औरत अपने आप को स्याह-फाम नहीं कहती कि मुझे लोग काली कहें, मुझे लोग स्याह-फाम कहें। कोई पसंद करती है औरत? ये हकीकत में क्या किरदार है, क्या कहा गया है। ये वो कलीसिया है जो गुनाह आलूद है। गुनाह आलूद कलीसिया की अक्कासी कर रही है। मुझे मत ताको, मैं स्याह-फाम हूँ, मैं तो काली हूँ, मैं तो बदसूरत हूँ। मेरा दिल पापां दे नाल होया सी काला काला, नजर जद आवन लगा मेरा दिल दा काला। ये उस कलीसिया की बात है जो अपने गुनाह का इकरार कर लेती है। पहले क्या थी? गुनाह आलूद, स्याह-फाम है, मैं स्याह-फाम हूँ, मुझे मत ताको। क्यों मुझे देखने के लिए आई हो? मैं तो बदसूरत हूँ। किस वजह से? गुनाह के सबब से। ये कलीसिया की इकासी कर रही है। जब वो गुनाह आलूद है, अभी उसने तौबा नहीं की, तौबा से पहले उसकी हालत क्या है? स्याह-फाम। तौबा से पहले उसकी हालत क्या है? बदसूरत है, जिसकी अक्कासी ये शूरवीर कर रही है कि मैं स्याह-फाम हूँ, मुझे क्यों देखने के लिए आई हो। अब उसने जब अपने आप को स्याह-फाम कहा है तो कलीसिया के लिए है कि कलीसिया ने जब अपने गुनाह का इकरार कर लिया है, जब उसने तौबा कर ली है, मेरा दिल पापां दे नाल होया सी काला काला, नजर जद आवन लगा मेरा दिल। जब इसका इकरार कर लिया तो यीशु के महंगे लहू ने
पहली हालत कलीसिया की क्या है? स्याह। और जब वो गुनाह का इकरार कर लेती है तो उसकी हालत क्या हो जाती है? बर्फ की मानद सफेद और खूबसूरत। अब दूसरे बाप की पहली आयत पढ़ें। अब क्या कहती है? जब उसने इकरार कर लिया है कि मैं स्याह हूं, मुझे मत ताको, खुदावंद ने उसे क्या किया है? उसे पाकीज़ा बना दिया है। खुदावंद ने धो के बर्फ की मानद सफेद कर दिया है। यसु दे महंगे लोग धो के कर ऐसा दिता जिमें है बर्फ चिट्टी, चिट्टा कर ऐसा दिता। अब वही शूरवीर पहले कहती है मैं स्याह हूं, मुझे मत देखो। दूसरे बाप की पहली है। अब क्या कहती है? जब गुनाह माफ हो गए, जब धुल गई, साफ हो गई, तो अब क्या कहती है? हाँ, मैं शारून की नरगिस, मैं शारून की नरगिस हूँ। अब क्या बन गई है? मैं शारून की। अब अपने आप को क्या कहती है? जब यीशु ने धो दिया है, अपने खून से धो दिया है, तो अब वो शारून की नरगिस बन गई। मैं शारून की नरगिस और वादियों की सोसन हूँ। क्या हूँ? वादियों की सोसन, पानियों की सोसन। ये सोसन का जो फूल है, ये तालाबों में, जोहड़ों में ये बड़ा खूबसूरत है। सोसन का फूल सफेद रंग का होता है। और शारून की नरगिस, नरगिस का फूल बड़ी खुशबू देता है। दूर से ही जिस तरह कभी जाए ना तो जिन घरों में होती है ना रात की रानी, तो दिन का राजा, कई कोठियों में होती है, तो दूर से उनकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो नरगिस का फूल है, दूर से इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। कब? जब यीशु से माफ कर देता है, जब यीशु से धो देता है। वही शूरवीर जो इकरार करती है कि मैं स्याह हूं, अब वही ऐलान करती है कि मैं शारून की नरगिस बन गई। शारून की नरगिस कैसे बन जाती है? जब यीशु से धो के सफेद कर देता है। और फिर यीशु से क्या कहता है? चौथे बाब की 7वीं आयत, चौथे बाब की 7वीं आयत यीशु से क्या कहता है? चौथे बाब की 7वीं आयत पढ़िए। जब वो इकरार कर लेती है, यीशु के आगे इकरार करती है, तो यीशु गुनाह माफ कर देने में क्या है? कादर है। जब खुदावंद माफ कर देता है, तौबा करती है और बपतिस्मा ले लेती है, तो वो क्या बन जाती है? अब यीशु क्या कहता है? ऐ मेरी प्यारी तू सरापा जमाल है। ऐ मेरी प्यारी तू सरापा जमाल है। वो क्या कहती है? मैं स्याह हूं, इकरार कर लिया है। अब क्या बन गई है? शारून की नरगिस बन गई है। और यीशु से क्या कहता है? ऐ मेरी प्यारी तू सरापा जमाल है, तू बड़ी खूबसूरत है। हाँ, तुझ में कोई ऐब नहीं। तुझ में कोई ऐब नहीं है। ये ऐब कैसे धुल जाते हैं? इफ्सियों 5वें बाब की 26वीं आयत पढ़िए। कैसे ऐब धुल जाते हैं? कैसे गुनाह धुल जाते हैं? कैसे ये उसकी बदसूरती खूबसूरती में बदल जाती है? कैसे? इफ्सियों 5वें बाब की 26वीं आयत पढ़िए। पढ़िए। ताकि उसको कलाम के साथ पानी से ऐसे होती है, ऐसे वो शारून की नरगिस बन जाती है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और साफ करके मुकद्दस बनाए, जिसके और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास और एक ऐसी जलाल वाली, तू सरापा क्या है? जमाल है। एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने हुजूर हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या धूली या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और यीशु क्या कहता है? तुझ में कोई दाग, तू सरापा जमाल है, तुझ में कोई दाग नहीं है। तो जब वो तौबा कर लेती है ना, फिर उस पर आज़माइश भी आती है। जिस तरह यीशु ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद रूह से जंगल में ले गया और इब्लीस उसे आजमाने लगा। इब्लीस हमलावर हो जाता है।
इसी तरह जब वो तौबा कर लेती है तो फिर इब्लीस हमलावर हो जाता है, क्योंकि उसका वोट कम हो जाता है। जो तौबा कर लेता है क्या होता है, इब्लीस का वोट कम हो जाता है, तो इब्लीस फिर उस पर हमलावर होता है। इसी तरह इब्तिदाई कलीसियाएं जो थी जिन्होंने यीशु को कबूल किया और उन्हें भी अधिकते और दुखों का सामना करना पड़ा। और वो क्या करते, जंगलों में, बियाबानों, जारों, गारों, पहाड़ों के गारों में जाके इबादत करते थे। अब यीशु तुम्हें पुकारता है। दूसरे बाब की 13वीं 14वीं आयत पढ़िए जरा। दूसरे बाब की 13वीं 14वीं आयत। हाँ, दूसरे बाब की 13वीं और 14वीं आयत। हाँ, अंजीर के दरख्तों में हरे अंजीर पकने लगे और ताकतें फूलने लगी, उनकी महक फैल रही है। सो उठ मेरी प्यारी मेरी जमीला, चली आ। अब यीशु क्या कहता है, उठ मेरी प्यारी मेरी जमीला, हाँ तू चली आ। तू कहाँ से चली आ, पहाड़ों की। ऐ मेरी कबूतरी जो चट्टानों के दरारों में और कड़कड़ाहटों की आग में छुपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना, क्योंकि तू माहिर जबीन और तेरी आवाज शीरीन है। ऐ मेरी कबूतरी, ऐ मेरी प्यारी, यीशु कह रहा है, कितने लक़ब देता है। कहाँ से चली आ, पहाड़ों की दरारों से, पहाड़ों की गारों से, क्योंकि जब कलीसिया पर जुल्म हुए, जुल्म होते हैं, इब्लीस हमलावर हो जाता है। जिस तरह जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, इब्लीस हमलावर हो गया। इसी तरह जो तौबा करता है, इब्लीस उस पर हमलावर हो जाता है। इसी तरह उन कलीसियाओं पर भी जुल्म सितम और इतने बड़े कि वो मजबूर होके पहाड़ों की गारों में जा छुपे और चट्टानों की दरारों में जा छुपे और दरियाओं के कराड़ों, ये कराड़ा समझते हैं क्या, किसको कहते हैं कराड़ा, जहाँ से दरिया गुजरता है ना, तो उसके नीचे से वो पानी जो है वो खार के ना जमीन को ले लेता है और एक बरामदा सा बन जाता है, एक शेल्टर सा बन जाता है, उसे कराड़ा कहते हैं। कराड़ा, कराड़ा यानी नीचे से पानी ने क्या किया होता है, हाँ वो उसको शेल्टर बना दिया और नीचे से पानी खार के ना मिट्टी ले जाता है और ऊपर से वो बरामदा नुमा बन जाता है, तो इसको कहते हैं कराड़ा। तो यहाँ पर कलीसियाएं जो थी छुपी हुई थी करारों में, हालांकि वो बड़े करारा जो बड़ा खतरनाक होता है, वो ऊपर भी गिर जाता है, उसके नीचे भी आ जाते हैं और बड़ी खतरनाक ये करारा जो होता है दरियाओं का, ये बड़ा खतरनाक होता है। और यहाँ कलीसियाएं छुप के इबादतें करती थी, पहाड़ों की गारों में इबादतें करती थी। तो अब यीशु आवाज देता है, मेरी कबूतरी पहाड़ों की गारों से और चट्टानों की दरारों से और दरियाओं के करारों से चली आ, मुझे अपनी आवाज सुना, तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, तू मेरे लिए गीत गा, तू मेरे लिए प्रेस्टिज कर, तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। ओ यीशु बुला रहा है, अब छुपने की जरूरत नहीं है। ओ यीशु बुला रहा है, मेरे पास चली आ, ऐ मेरी प्यारी, ऐ मेरी कबूतरी, मेरे पास चली आ। आगे 5वें बाब में ये 2 कलीसियाओं का जिक्र आता है। एक है फर्माबरदार कलीसिया, 5वें बाब की दूसरी आयत। अब जब यीशु बुलाता है तो जो फर्माबरदार कलीसिया है वो क्या कहती है, और जो सुस्त है, बेवकूफ है, और वो क्या कहती है। दूसरी आयत में, 5वें बाब की दूसरी आयत में ये फर्माबरदार कलीसिया है जिनको यीशु आवाज देता है, ऐ मेरी कबूतरी पहाड़ों की गारों से, चट्टानों की दरारों से और दरियाओं के करारों से मेरे पास चली आ। तो वो क्या कहती है, मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। ये फर्माबरदार कलीसिया है, मैं सोती हूँ पर मेरा दिल रात दे पैरां विच जागदा रहना, रात दे पैरां विच जागदा रहना। जो खुदा की कलीसिया है, खुदा के लोग हैं, वो रात को इबादत करते हैं, रात को जागते हैं। मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है, ये फर्माबरदार कलीसिया है।
दिल के दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा। और वो खुदावंद रफ़ाकत रखना चाहता है, वो हमारे दिल पर खटखटा रहा है। ये फर्माबरदार कलीसिया है। मैं सोती हूँ, मेरा दिल जागता है मेरे महबूब के बाद जो खटखटाता और कहता है मेरे लिए दरवाजा खोल, मेरे लिए दरवाजा खोल। मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, ये 4 लक़ब देता है। मेरी प्यारी, मेरी महबूबा, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा। कैसे बनी है? ताकि उसको कलाम से, पानी से गुस्ल देकर एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया। अब यीशु 4 लक़ब देता है उसको। क्या? प्यारी, पाकीज़ा, कबूतरी, महबूबा। अब यीशु खुश हो गया। ये फर्माबरदार कलीसिया की आवाज है। मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। जागते रहो और दुआ करते रहो। ये खुदा के मुकद्दस लोग हैं। ये खुदा की फर्माबरदार कलीसिया है जो रात को जागती है और यीशु की तारीफ करती है। अब सुस्त कलीसिया, नाफरमान कलीसिया, बेवकूफ कलीसिया, वो क्या कहती है? तीसरी आयत में, हाँ जी, मैं तो कपड़े उतार चुकी। अब जो सुस्त कलीसिया है, जो नाफरमान कलीसिया है, वो क्या कहती है? मैं तो कपड़े जरा मेरा नेट का सूट सी मैं ते ना छड़िया है, मैं तो हुण नाइट सूट पा लिया है, मैं कपड़े। क्या करती हैं जी? जो सूट होता है नेट का, उसको क्या कहती है? तार के रात को क्या करती है? नाइट सूट, गाउन पहन लेती है। मैं तो कपड़े, मैं तो बड़ी थकी, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है। ये नाफरमान कलीसिया, बहानेबाज कलीसिया है। अब बहाना क्या कर रही है? मैं तो कपड़े उतार चुकी। अब उनको अब फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी। मैं तो अपने पाँव धो चुकी। अब उनको क्यों मैला करूं? गिरजे जाते राह दे विच खोबा बड़ा है, राह दे विच पानी बड़ा है, राह च चिक्कड़ बड़ा है, भरकत ना पैरां दी। मैं तो पैर धो के ते हुण मैं नाइट सूट पाया है, मैंने पाँव धो लिए हैं। अब उनको फिर मैला गिरजे आउण दे नाल की हो जाते ने पैर मैले, क्योंकि राह दे विच खोबा बड़ा ना, पानी बड़ा है, चिक्कड़ बड़ा है। तो ये बहानेबाज कलीसिया है, नाफरमान कलीसिया है। मैं कैसे अपने पाँव मैले करूं? मैं तो कपड़े भी उतार चुकी हूँ, अब मैंने गाउन पहना हुआ है। अब दोबारा फिर मैं अपना वो सूट कैसे पहनूं? हाँ जी, आगे। मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिल जिगर में उसके लिए गुंबद हुई। मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी और अब क्या है? जो दरवाजा बार बार खटखटा रहा है, यीशु बार बार खटखटा रहा है, ख्याल आ गया चलो मैं खोल ही लवा। अक पई, जिसने अक पई ना, यीशु बार बार खटखटाता है, बार बार खटखटाता है। उठ मेरी महबूबा, उठ में। और वो तो बहाने करती है। अब उसे ख्याल आता है चलो मैं दरवाजा खोल ही दिया, लेकिन यीशु कब तक खटखटाता रहेगा? आखिर यीशु चला गया। जब उसने दरवाजा खोला तो यीशु जा चुका था। वो कब तक खटखटाता रहेगा? बात की समझ भी आ रही है नहीं? अभी वो खटखटा रहा है। उठ मेरे लिए दरवाजा खोलो। अगर बहाने करेंगे तो फिर वो चला जाएगा। बहाने करेंगे जिस तरह ये बहानेबाज कलीसिया है, मैं तो कपड़े उतार चुकी, मैं तो पाँव धो चुकी, अब मैं उन्हें कैसे पैरा करूं? और यीशु खटखटाता है। आखिरकार यीशु चला गया। अब क्या आया? चलो मैं दरवाजा खोल ही लवा। अब दरवाजा खोलती है तो यीशु चला गया है। अब उसे ढूंढती है तो फिर क्या हुआ? छठी है। मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला, लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। मेरा महबूब चला गया था। वो कब तक खटखटाता रहेगा? कब तक वो इंतजार करेगा? वो हमारे बारे में तहम्मुल करता है ताकि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे। आखिर कब तक? एक वक्त आएगा वो
चला जाएगा। और जब वो चला गया, उठी, दरवाजा खोला, लेकिन वो चला गया। अब वो ढूंढने निकली है। अजी क्या हुआ? जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। मैंने उसे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। मैं पीछे आवाजें देने लगी तो उसने ना मुड़कर देखा ना मेरी आवाज को सुना। यशायाह पहले बाब की 15वीं आयत पढ़िए जरा। हर चीज का एक वक्त है। यीशु अब खटखटा रहा है। अब एक वक्त आएगा कि वो चला जाएगा और फिर अब कहती है मैं पीछे आवाजें देती हूँ, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। यशायाह पहले बाब की 15वीं आयत। हाँ जल्दी। हर चीज का एक वक्त है, मांगने का एक वक्त है, ढूंढने का एक वक्त है। लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मांगने का भी एक वक्त है। जब वक्त गुजर जाए तो मांगने से भी नहीं मिलता। अब खुदा क्या कहता है? पहले बाब की 15वीं आयत। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं क्या करूंगा? तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। हाँ, तुम दुआ पर दुआ करोगे और मैं ना सुनूंगा। मेरा महबूब चला गया, मैंने आवाजें दी, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब ना दिया। और आगे मुझे पहरे वाले मिले। मैं शहर में ढूंढ रही जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले। उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। पहरे वाले मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा पर उन्होंने क्या कहा? क्या किया? मुझे मारा, मुझे घायल किया। हाँ, और मेरी चादर छीन ली। क्या किया? मुझे मारा और घायल किया और क्या किया? मेरी चादर मुझसे क्या मतलब है? चादर का छीना जाना क्या है? मुझे बेहुरमत किया, मुझे मारा, मुझे घायल किया और मुझे बेहुरमत कर दिया। मेरी चादर छीन ली। किन्होंने? पहरेदारों ने। ये पहरेदार कौन है? ये वो झूठे पादरी जो झूठी तालीम देते हैं, जो लोगों को तौबा की तरफ तो आने नहीं देते और लोगों को तरह तरह की तालीमें करके झूठ की तालीम देते हैं। ये वो पहरेदार वाले हैं जो आते हैं, चंदा बटोर के ले जाते हैं। उन्होंने मुझे मारा और मुझे घायल किया और क्या किया? मेरी चादर भी छीन ली। चंदा किसे पाया? चंदा किसे बचे या ना बचे? ये वो पहरेदार हैं, ये वो पहरे वाले हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, जो अंधों को अंधे राह बताते हैं। और ये अंधे क्या करते हैं? बल्ले 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 बल्ले। अंधे अंधों के पीछे वो खुद भी गड़े में गिरेंगे और वे भी गड़े में गिरेंगे। पहले वाले मिले। ये पहले वाले हैं जो झूठी तालीम देते हैं, झूठे खादम हैं, जिन्हें कोई काम नहीं लगता। पादरी बन जाता है ना, को जावे ना जावे ना, तो पादरी साहब पहले वाले मिले और उन्होंने मुझे क्या किया? घायल किया। अब मैं थकी हारी। तीसरे बाब की 4थी आयत पढ़िए। तीसरे बाब की 4थी आयत। हाँ, अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी। हाँ, अब देखिए अब क्या कहती है? ये पहरे वाले जो झूठी तालीम देते हैं, मुझे मारा, मुझे घायल किया और मेरी चादर छीन ली। अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी। अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि मेरी जान का प्यारा मुझे अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी। क्या किया था? ये झूठे जो पादरी हैं, झूठी तालीम देने वाले, झूठे उस्ताद, जिस तरह पतरस का दूसरा खात दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे, इस उम्मत में झूठे उस्ताद होंगे। अभी मैंने झूठे उस्तादों से थोड़ा आगे बढ़ी कि भाइयों का गिरजा मैंने मिल गया और मुझे उसे जावे ले गया। क्या हुआ? अभी मैं आगे बढ़ी तो क्या हुआ? अगर भाइयों ना गिर जाते, वो भाई बात कर रहे थे, खुदा की प्रेज़ कर रहे थे।
तो जब मैं वहां पहुंची, अभी उनसे आगे बढ़ी, तो मुझे मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। कितना मारा? झूठे उस्ताद जो पहले वाले थे। अब उनसे आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि आपको आपकी जान का प्यारा मिल जाए। जान का प्यारा से मुलाकात करना चाहते हैं, यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ना होगा। इन झूठी तालीम देने वालों से आगे बढ़ना होगा। ये आपकी हिम्मत है, ये आपके अंदर जरूरत है। उस नाफरमान कलीसिया की तरफ नहीं जो बहाने करती है, मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और जिस तरह हम लूका की इंजील 19वें बाब की में देखते हैं ज़कई का वाक़या। कई बार यीशु यरूशलेम में आया और उसने देखने के लिए बड़ी कोशिश की, जुलूस की तरफ जाता था, भीड़ की तरफ जाता था और बड़ा हड्डियां चुक चुक के लेता था, पर यीशु नजर नहीं आता था। क्या होता था? धक्के खा के, कट्टा पवा के वापस आ जाता था। और ये मैं दावे से कह रहा हूँ, और जितने भी मरियमाबाद जाते हैं, या एक्सीडेंट होता है या कोई हादसा हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है, अब खुदा उन्हें हदायत करता है कि यीशु के पास जाओ, इसकी तरफ ना जाओ। हाँ, आपके सामने भी वाक़या है। और ये 4-5 साल हो गया है, ये फ्रांसिसाबाद से भी पूरा ट्योटा गया था, पूरा ट्योटा ही वो सारे मर गए थे, एक्सीडेंट से मर गए। और जब भी जाते हैं खुदावंद उन्हें हदायत करता है इधर ना जाओ, तो यीशु के पास जाओ। जब मरियम जिंदा थी तो काना गलील की शादी में उसने कहा यीशु के पास जाओ, और यीशु मरी हुई के पास जाते हैं और उस बुत के आगे सिजदा करते हैं, मुजस्समे की पूजा करते हैं। अब खुदावंद उन्हें क्या करता है? जबरदस्ती वापस भेजता है। होता है या नहीं होता कि बंदे के पुत्र बनो, यीशु को जाओ। अब यीशु के पास आने की जरूरत है। और जिस तरह ज़कई भीड़ की तरफ जाता है, जुलूस की तरफ जाता है, कुछ नहीं मिलता, धक्के खा के कट्या को आके आ जाता है। लेकिन एक दिन यीशु उस रोड पर जा रहा था जिसके चौराहे में गुलर का दरख्त था, आज उस पॉइंट की तरफ जा रहा है जहां से यीशु नजर आता है। अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि मुझे मेरी जान का प्यारा मिल गया। अब आगे बढ़ने की जरूरत है, उस पॉइंट की तरफ जाने की जरूरत है जहां से आपको यीशु नजर आ जाए। अब वो जो ज़कई था वो गुलर के दरख्त पर चढ़ गया है, उसने ऐसा पॉइंट ढूंढा है, अब वो आगे बढ़ गया है। क्या हो गया? जुलूस से आगे बढ़ गया है। अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी, अब ज़कई क्या किया है? वो जुलूस से आगे बढ़ गया है और क्या हुआ? गुलर के दरख्त पर चढ़ गया है जहां से उसे यीशु नजर आ गया है। उसे यीशु नजर आगे बढ़ने की जरूरत है, उस पॉइंट की तरफ जाने की जरूरत है जहां से आपको यीशु नजर आ जाए। उस पॉइंट की तरफ मत जाए, धक्के बैठ के कटा पवा के घर वापस आ जाओ। अब जब उस पॉइंट पर गया जहां से यीशु नजर आ गया, तो अब यीशु ने कहा आज मुझे तेरे घर ही जाना है। ये तरीका है यीशु को अपने घर ले जाने का। मैं पहले वालों के पास गई, उन्होंने मुझे मारा, घायल किया और मेरी चादर भी उतार ली। उस पॉइंट की तरफ जाएं, आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े, हिम्मत करें, आगे बढ़े, आपको यीशु मिल जाएगा। ज़कई की तरह उस पॉइंट की तलाश करें जहां से आपको यीशु नजर आ जाए और यीशु कहेगा आज मुझे तेरे घर ही जाना है। हालेलुया। खुदा अपने कलाम को इसी लाभ साहब को बरकत दे।